اور بلیٹن کے آغاز میں تباہ کن بارش کی بات کریں گے۔ کراچی میں بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ اردو بازار میں کتابیں بھی بارش کی نظر ہو گئیں۔ برساتی پانی اردو بازار کی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ بارش کے پانی کے باعث اسلامی اور قیمتی کتابوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مسیح جانی یا ایمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ایمہ بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، کراچی میں بارش نے تباہ میں کتابیں بھی بارش کی نظر ہو گئی ہیں۔ برساتی پانی اردو بازار کی دکانوں میں داخل ہو گیا ہے۔ بارش کے پانی نے دکانوں میں اسکول کی کتابوں سمیت اسلامی کتابوں سمیت بیشتر کتابوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کتابیں ڈوبنے کے باعث اردو بازار کے تاجروں کو بڑا جھٹکا بھی لگا ہے، جس کے باعث اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اردو بازار کے تاجر ہیں وہ اپنی مدداب کے تحت جو ہے وہ پانی نکالنے میں مصروف ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اردو بازار سمیت دیگر علاقے جو ہے وہ تاحال جو ہے ان میں پانی کی نکاسی کا نظام جو ہے وہ ابتر ہے، جس کے باعث شہریوں کو بھی خاصی پریشانی ہو رہی ہے، جبکہ اردو بازار کے تاجر جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ تقریباً اردو بازار کی تمام دکانوں میں جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا تھا، جس کے باعث کتابوں کو جو ہے وہ بھاری نقصان ہوا ہے، اور تاجر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ایمہ، یہ بتائیے گا کہ جو کتابیں ہیں عموماً وہ سٹاک میں گودام میں رکھی جاتی ہیں یا پھر شیلفز پہ لگی ہوتی ہیں؟ پانی کیا اتنا بھر گیا کراچی میں جہاں پر کتابوں تک پہنچ گیا، ان کو ڈبو دیا، خراب کر دیا؟ جی بالکل، دیکھیں صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ کل رات سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ شہر میں بیشتر مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے، جس کے باعث شہر کی بیشتر سڑکیں بھی جو ہے وہ زیر آب آئی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اردو بازار کی بات کریں تو اردو بازار کی بیشتر دکانوں میں جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا، اور پانی جو ہے وہ اتنی وافر مقدار میں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کتابوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کتابیں جو ہے وہ دکانوں کے اسٹالز میں جو موجود تھیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈبو دیا ہے، اور کافی کئی فٹ تک دکانوں میں تاحال جو ہے وہ پانی موجود بھی ہے۔ جی ایمہ، یہ بھی بتائے گا کہ پہلے ہی تعلیمی سال کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اب اردو بازار میں جو کتابوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے، تو اس پر طلباء کی مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے؟ بالکل، دیکھیں ایسا ہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کتابوں کی چھپائی بر وقت نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ تعلیمی سال بھی جو ہے وہ اب اگست میں شروع ہو رہا ہے، اور اب جو ہے وہ اردو بازار میں بارش کا پانی داخل ہونے کے باعث دکانوں میں داخل ہونے کے باعث جو ہے وہ کتابوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے طلباء کا مستقبل بھی ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انٹر بورڈ کے متنازع نتائج کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تعلیمی سال بھی بر وقت کتب کی چھپائی نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ آگے کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں ہم نے دیکھا تھا کہ تعلیمی سال شروع ہونا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس مکمل ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو نیا تعلیمی سال ہے وہ اگست سے شروع ہوگا، اور جس کی وجہ جو ہے وہ ذرائع کے مطابق یہی بتائی جا رہی ہے کہ بر وقت کتابوں کی چھپائی نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ نیا تعلیمی سال اگست میں شروع ہوگا، اور طلباء کا مستقبل جو ہے اس کی وجہ سے خاصا تاریک بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ طلباء اور طالبات خاصے پریشان بھی ہیں اپنے نتائج کو لے کر، اور اب جو ہے وہ کتب کی بر وقت فراہمی نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ طلباء ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں پریشان دکھائی دے سکتے ہیں۔ جی ایمہ، یہ بھی بتائے گا کہ کافی حد تک کتابیں جو ہیں خراب ہو گئی ہیں اور طلباء کے مستقبل کو بھی خطرات لاحق ہیں، تو یہ بھی بتائے گا کہ کتابوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی جائیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیا تعلیمی سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ کتابوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ اگر بالخصوص سرکاری کتابوں کی بات کریں تو سرکاری کتابیں جو ہوتی ہیں وہ مفت فراہم کی جاتی ہے، لیکن سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو کتابیں ہیں وہ ہم نے اس سال بھی دیکھا کہ ان کی جو چھپائی تھی وہ بر وقت نہیں ہوئی، جبکہ اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ چھپائی کا کام جو ہے وہ تاحال شروع نہیں ہوا ہے، اور نیا تعلیمی سال بھی اگست سے شروع ہونا ہے، اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ فیب کا مہینہ چل رہا ہے، اور تاحال جو ہے وہ کتابوں کی چھپائی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری کتابیں تو مفت فراہم کی جاتی ہیں بچوں کو، لیکن جو کیمبرج کی اور آکسفورڈ کی اور جو دیگر پرائیویٹ اسکولز کی جو کتابیں ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہے جیسی تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ والدین جو ہے وہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ نئی کتابوں کے بجائے جو ہے وہ بچوں کو پرانی کتابیں دلا کر گزارا کر رہے ہیں۔ جی ایمہ، یہ بھی بتائے گا کہ یوں تو رہائشی علاقوں میں زیادہ ایمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ایمہ، بہت شکریہ آپ کا۔ برساتی پانی اردو بازار کی دکانوں میں داخل ہو گیا اور کتابوں کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔
निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात मोहम्मद मुबीन जमानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए। बल्दियाती इदारों के सरबराहान को हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात मोहम्मद मुबीन जमानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए हैं। बल्दियाती इदारों के सरबराहान को हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अपडेट कीजिएगा। जुमानी जो है शहर के हंगामी दौरे पर निकले हैं, जिसमें तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान को जो है ऑन बोर्ड लिया गया। लोकेशन मुख्तलिफ जहाँ पे इंतजामात के हवाले से जो है पहले से डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी गई थी, उन मकामात का दौरा किया। वाटर बोर्ड के CEO, COO, इसके अलावा जो है मेयर कराची से मुकम्मल तौर पर रब्ता किया गया और शहर की वो तमाम अहम शाहराएं जो कि बारिश के पेश नज़र ब्लॉक हो चुकी थी, उन इलाकों का दौरा किया, उन शाहराओं का दौरा किया। और मुबीन जुमानी ने दौरे के दौरान बताया कि वो तमाम मकामात को जो है वो पानी से क्लियर कर दिया गया है। वाटर बोर्ड की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची ने जो है वो तफसीलात से आगाह किया। क्लिफ्टन हो गया, शार पाकिस्तान हो गया, शार कायदीन हो गया और शार फैसल के हवाले से जो ब्लॉकेज थी मुख्तलिफ मकामात पे वो तमाम जो है वो क्लियर कर दी गई है। अंडर पासेस का जो है वो विजिट कराया गया। निगरान सूबाई वजीर बल्दियात को तमाम अंडर पासेस से जो खड़ा पानी था वो भी मुकम्मल तौर पे निकाल दिया गया है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को जो है वो हिदायत जारी की गई है। जिन मकामात से पानी निकाला गया है वहाँ पे मौजूद कचरा और दीगर मट्टी पत्थर जो मौजूद हैं जो कि सड़क को मजीद खराब करेंगे, उनको भी फौरी तौर पे जो है वो क्लियर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आपने हमें अपडेट किया। बारिश के दौरान फौरी और बर्वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? निगरान वज़ीर आला सिंध DIG ट्रैफिक और PDMA पर बरस पड़े। वज़ीर आला हाउस में बारिश के हवाले से हंगामी इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस सटाइल मकबूल बाकिर ने DIG ट्रैफिक पुलिस और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को नाराज़गी के खतूत जारी करने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मूसलाधार बारिश की सूरत हाल से मुनासिब तरीके से निमटने के लिए तमाम शहरी इमरजेंसियों, एजेंसियों, बल्दियाती इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि शहर की तमाम बड़ी और छोटी शाहराहों को साफ करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। इससे कबल निगरान वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने निगरान वज़ीर आला सिंध को बारिश के हंगामी इकदाम और 8 फरवरी तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल KDA नवीद अनवर का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए KDA के अमले को खुसूसी हिदायत जारी की हैं। शाहराहों पर पानी की शिकायत से मुतालिक इदारा तरक्कियात कराची 24 घंटे अलर्ट रहेगा। कोताही की सूरत में अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल KDA नवीद अनवर की खसूसी हिदायत पर रेल एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। DG KDA ने तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। DG KDA का कहना है कि मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत की गर्ज से हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। सिविल अस्पताल और उसके अतराफ के इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी कई फुट तक जमा हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में अब्र रहमत बरसने पर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर में गरज चमक के साथ बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिविल अस्पताल, रंचोड़ लाइन और इतराफ के इलाकों में भी कई फीट पानी जमा हो गया। घुटनों पानी जमा होने के बाइस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। शहरी कहते हैं हर बारिश के बाद इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। निकासी का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। ऐसा है कि यहाँ अगर 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो ये समझ लो कि 2 दिन के लिए क्या है। ये इतना गहरा है और बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, मगर पानी का जो है ना मामला हल नहीं हो सका अभी तक। शहरियों ने मेयर कराची से मुतालबा किया है कि अहम शाहराहों से बारिश के पानी की निकासी कराई जाए। काविश मेमन, सिटी 21। शहर में बारिश से अस्पताल भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। जिना अस्पताल में इमरजेंसी के सामने गटर उबल पड़े। बारिश के पानी में सीवरेज का पानी शामिल हो गया। रिपोर्ट करेंगी राबेल अशरफ। बारिश से शहर की सड़कें और शाहराहें तो ज़ेरे आब आईं, अस्पताल भी तालाब बन गए। रही सही कसर सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने पूरी कर दी। जिन अस्पताल के दाखिली रास्ते और इमरजेंसी के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया।
ایمرجنسی کے سامنے گٹر بھی ابل پڑا. بارش کے پانی میں سیوریج کا پانی شامل ہو گئے. شہری کہتے ہیں اسپتال میں بھی یہ حالت ہوگی تو مریض مزید بیمار ہو کر جائے گا. حکومت سربراہ کو یہ چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے, مخلص ہونا چاہیے ملک کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی, تاکہ یہ اس طرح کی پوزیشن نہ ہو. ہمارے ملک بہت بیکورڈ پیچھے جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں پانی جمع ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. بہت زیادہ گندگی ہے اور اس طریقے سے جس طرح یہ ماحول بنا ہوا ہے, یہ ماحول ہاسپٹل کا نہیں ہوتا. اس طریقے سے جتنی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے ہاسپٹل کے اندر, اس سے زیادہ گندگی ان کے اپنے خود کے گٹر ابل رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم باہر پریشانی کے باعث ہے, اس طریقے سے یہاں ہاسپٹل کے اندر, یہ تو ہمارے لیے افسوسناک بات ہے. ہم کراچی والوں کے لیے افسوسناک بات ہے. صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مریض مزید بیمار ہونے کے بجائے شفا یاب ہو سکے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رابیل اشرف, سٹی 21. شہر میں برسات کے بعد لوگوں کو مشکلات کا سامنا. پولیس کا عملہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے مشکلات کا شکار. موبائل خراب ہونے پر پولیس ملزمان کو پرائیویٹ گاڑی میں عدالت لے کر پہنچی. گلبہار تھانے میں برسات کا پانی داخل ہو گیا. نبی بخش تھانے میں برساتی پانی داخل ہو گیا. تفصیلات جانیں گے شاہزیب حسین کی رپورٹ میں. شہر قائد میں برسات سرکاری کام میں آڑے آ گئی. انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. پولیس کو سرکاری امور انجام دینے میں پریشانی کا سامنا. سٹی کورٹ کے اطراف برساتی پانی جمع ہونے سے اسپیشل جج کے سامنے قیدیوں کو پیش کرنے کے لیے بلدیہ احتیاط ٹاؤن پولیس کی موبائل خراب ہو گئی. ملزمان کو پرائیویٹ گاڑی میں عدالت پہنچایا گیا. تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمان کو منشیات اور چوری کے الزام میں اتحاد ٹاؤن پولیس نے گرفتار کیا تھا. جگہ جگہ پانی پانی ہے. ہماری موبائل سرکاری خراب ہو گئی, اس لیے ہم نے اپنی ذاتی پرائیویٹ سواری لی ہے. 5 ملزم ہیں ہمارے پاس. یہ کچھ CNS کے ہیں, کچھ گٹکے ماوے کے ہیں. اچھا. گلبہار تھانے میں برسات کا پانی داخل ہوا تو رپورٹنگ روم میں آئے شہری اور پولیس دونوں ہی پریشان ہو گئے. گلبہار تھانے کے SHO شبیر خٹک نے بتایا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت تھانے سے پانی نکال دیا ہے. کرنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ بھی برسات کے پانی میں ڈوب گئی. نبی بخش تھانہ بھی زیر آب آ گیا. تھانے سے اب تک بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا. سٹی 21 کی خبر پر ایکشن. نبی بخش تھانے سے پانی کی نکاسی کا عمل مکمل. بارش کے بعد تھانے کا داخلی اور خارجی راستہ بند ہو چکا تھا. مزید جانیں گے جنید جاوید سے. دیکھیں جی, آج صبح بارش کا جب آغاز ہوا تو اس کے بعد مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ شہر کی شاہراہوں میں بھرنا شروع ہو چکا تھا. لیکن وہیں پر جہاں میں اس وقت موجود ہوں, یہ نبی بخش تھانہ ہے, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اب سے دوپہر کا جو ٹائم تھا اور شام کا جو ٹائم تھا, اس وقت بڑی مقدار میں پانی جمع تھا. لوگ اندر یا باہر جو ہے وہ یہاں سے نہیں آ جا سک رہے تھے, جس کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی. لیکن اب جو ہے سٹی 21 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک ہوئی اور یہاں پر سے جو ہے وہ پانی مکمل طور پر نکاسی کر لیا گیا ہے. یہاں پر جو عملہ ہے وہ بھی اب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنا کام کر سکے گا, کیونکہ یہاں پر جو آنے اور جانے کا راستہ تھا وہ مکمل طور پر بند تھا. میرے کیمرامین دکھائیں گے اجلان کہ یہاں پر کیچڑ جو ہے وہ تو اس وقت جمع ہے, لیکن پانی کی نکاسی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. جبکہ انتظامیہ نے جو ہے وہ یہاں پر وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے اس کو ایڈریس کیا جائے گا, حل کیا جائے گا. لیکن اس تھانے کے جو اطراف کی گلیاں ہیں وہاں پر اب بھی پانی جو ہے وہ بدستور جمع ہے. اگر ہم بات کریں گارڈن کی, تو گارڈن جم خانے کے باہر بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی بڑی مقدار میں پانی جمع ہے, جس کی نکاسی ابھی تک بلدیہ عظمی کراچی نہیں کرا سکی ہے. تاہم یہاں نبی بخش تھانے میں جو پانی جمع تھا اس کی نکاسی مکمل ہو چکی ہے. جی ناظرین, چند گھنٹے کی بارش نے شہر کا حلیہ ہی بدل ڈالا. ٹیپو سلطان روڈ پر واقع شبیر آباد کی گلیوں میں پانی بھر گیا. بارش سے گیس پائپ کی لائنوں کی لیکیج بھی سامنے آ گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے, گلیوں میں پانی جمع ہے. ایاز رانا کی رپورٹ. شہر قائد میں ابر رحمت انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. گزشتہ شب ہونے والی بارش نے شہریوں کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا. شبیر آباد کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی جمع ہونے سے گیس لیکیج بھی. علاقے مکینوں کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے گیس غائب ہے, کوئی سننے والا نہیں. بارش کے باعث گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. 2 مہینے سے ہم لوگ کے یہاں یہی مسئلہ ہے, لائنوں میں پانی آ جاتا ہے, گیس نہیں ہے. اور ہم سب کو کمپلین کر چکے, سوئی گیس ہیڈ آفس تک جا چکے. یہاں ہمارے قریب ہی سوئی گیس کا آفس ہے, ادھر بھی کمپلین کر چکے, بٹ کوئی حل نہیں ہے. بارش آتی ہے تو سمجھو کہ ہم تو بالکل بے گھر ہو جاتے ہیں, نہ آنے کا راستہ نہ جانے کا راستہ, بالکل خوف و ہراس ہو جاتا ہے. آپ ابھی بھی گلی میں آئے, پورا پانی لبالب بھرا ہوا ہے. تو کوئی یہاں پہ تو کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی صورتحال ہے نہیں, کوئی آنے والا ہے نہیں, کوئی حکومت آتی نہیں ہے. سب کہتے ہیں ووٹ دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں.
बट कोई आता नहीं है सामने। रिहायशियों ने शिकवा किया कि वोट सब मांगते हैं मगर काम कोई नहीं करता। कैमरामैन शाहजेब हसन के साथ अयाज राना, सिटी 21। इंतजामिया की नाअहली के बायस सब्र रहमत कराची वालों के लिए जहमत बन गई। कोरंगी क्रीक रोड से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, मजीद बताएंगे कामरान मिनहास। जी बिल्कुल, अब्र रहमत जो है कराची वालों के लिए जहमत बन चुकी है। कराची की सड़कों पर जो है ताहाल जो है पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल वाक़ हो रहा है और उसके अलावा शहरियों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त कोरंगी क्रेक रोड पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये सूरत हाल है। पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार गिर भी रहे हैं और गाड़ियाँ भी यहाँ पर फंस रही हैं, लेकिन अब तक जो है यहाँ से पानी निकालने की कोशिश नहीं की गई है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा नाला और परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या कहेंगे, ये पानी कब से कोई निकालने आया है इधर? सुबह 5 बजे से कोई नहीं आया। सुबह 5 बजे से ये गाड़ियाँ बिल्कुल भी बंद पड़ी हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। वोट मांगने सब आते हैं मगर काम नहीं करते और इधर आवाम के लिए बड़ा मुश्किलात हैं। कोई भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और जो वोट मांगने आ जाते हैं बोलते वोट हमारे को दो, हमारे को दो। ये कौन सा ड्रामा इन लोगों ने लगाया हुआ है? वोट मांगने पर नहीं आओ, काम तो करो आवाम के लिए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में भी है। कहा जा रहा है वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। सर आप क्या कहेंगे? सर आवाम के लिए बहुत बड़ा मुश्किलात है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर जो है मतलब कोई तवज्जो, कोई वो नहीं है KMC की, ना कोई गाड़ी आ रही है पानी निकालने के लिए ना और कुछ। पूरी मार्केट भी मुतासिर है, गाड़ी बीच में फंसी हुई है कल शाम से। तो अभी तक कोई भी बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि रोड की ट्रैफिक भी मुतासिर है। जी आप देख सकते हैं कि शहरी जो है बहुत ज़्यादा नाला है, अब्र रहमत जहमत बनी हुई है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो सड़कों पर पानी जमा है उन्हें निकाला जाए ताकि शहरी जो है वो जहमत से बच सके। जी, कराची में होने वाली बारिश से शहर की मुख्तलिफ सड़कें और चौराहे तालाब का मंजर पेश करने लगे। वीटा चौरंगी की अतराफ भी पानी जमा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कोरंगी के इलाके वीटा चौरंगी पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रात होने वाली बरसात के बायस अब तक कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर मौजूद है, गलियों में मौजूद है, जिसके सबब जो आम शहरी हैं उनको काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त वीटा चौरंगी का इस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन शहरियार अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाजा करके दिखा सके कि यहाँ पर ये चलती फिरती शाहरा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर शहरियार अगर आपको दिखाएं कि ये आपको कुछ इलेक्ट्रिकल पोल दिखाई दे रहे होंगे और इसके नीचे ये फुटपाथ है। ये सर्विस रोड है एक जानिब, इसके बाद मिडिल में फुटपाथ है और इसके जो दाई जानिब है ये चलती फिरती शाहरा है। अब पानी इतना है बारिश का कि ये फुटपाथ जो है आपको नज़र ही नहीं आ रही होगी। चलती फिरती शाहरा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद बरसात का जो पानी है कल से अब तक यहाँ पर मौजूद है। कीचड़ भी है, गंदगी भी है, इसके अलावा शहरियों को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर मौजूद हैं, इतना पानी यहाँ पर जमा है, कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और गाड़ियाँ भी नहीं आ रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ताख़ीर का शिकार हो रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? सर ये जो मसला है ये तकरीबन 1 हफ्ते से चल रहा है। यहाँ रोज़ पानी होता है, बहुत ट्रैफिक हो जाती है, बहुत जो लोग शाम को छुट्टी पे जाते हैं, जिसकी छुट्टी होती है कंपनी में बहुत परेशान होते हैं। क्या ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बरसात का पानी ही नहीं है बल्कि यहाँ पर ये जो नाला है ये भी ओवरफ्लो हुआ है और इस नाले का जो पानी है वो भी सड़क पर मौजूद था, लेकिन जब क्योंकि गुज़िश्ता रात बहुत तेज़ बारिश हुई है तो नाला जो है ओवरफ्लो हो चुका है। तहम अब तक इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर पानी की निकासी आपका काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। जी, कराची में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात की तरह कोरंगी सनती एरिया भी पानी में डूब गया। गाड़ियां बंद, ट्रक और बसें सड़कों पर धंस गए। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। शहर के बेशतर इलाकों की तरह कोरंगी सनती एरिया भी ज़ेरे आब आ गया। कोरंगी, नासिर जम, चमड़ा चौरंगी, मेरान टाउन, बिलाल कॉलोनी और उसके अतराफ के मकीन सड़कें तालाब बनने से शदीद अजियत में मुब्तला। शहरी कहते हैं हालिया बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों के कामों की कुली खोल दी। निकासी आब ना होने से शदीद परेशानी है। ये जो है ना, ये पहले इन लोगों ने खड्डे किए, खड्डे से ही भरे नहीं है। अभी ये पानी की वजह से ये जो है ना गाड़ियाँ नरम जगह होगी, ये फंस रही हैं। ये जो है ना चंद घंटे बारिश होने के बावजूद गाड़ियाँ जो है ना फंसी रहती हैं। ये तो लोड गाड़ियाँ हैं, वो सामने कोस्टर है, खाली गाड़ी है, वो पार नहीं हो रही।
शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलाकों से पानी की निकासी के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। कराची में रात से होने वाली मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर मकामात पर पानी जमा होने से सड़कें धंस गई हैं। लियाकताबाद और शेरशाह में सड़कें बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। इस हवाले से ये रिपोर्ट। कराची में गुज़िश्ता रोज से होने वाली मूसलाधार बारिश ने बल्दियाती इदारों की किली खोल दी। शहर के बेशतर मुकामात पर सड़कें धंस गईं। गार्डन में सड़क बैठने के बाद ट्रैफिक की आमद और रफ्त बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत सड़क का शुगाफ भरने में मसरूफ है। लियाकताबाद नंबर 5 सिंधी होटल के करीब भी सड़क बैठ गई। सिंधी होटल से पुरानी सब्जी मंडी जाने वाली सड़क भी जगह जगह से धंस चुकी है। शहरी भी सड़कों की नाकिस तामीर पर मुताल्लिका इदारों से नाला दिखाई दिए। कहते हैं उजलत में सड़क बनाई गई, कोई पुरसाने हाल नहीं। हाफिज नईम साहब ने बनवाया था, दर्ज दे के गए थे, हमने रोड डलवाया, ऐसा डलवाया कि दोबारा बैठ गया वो। मस्जिद के आगे भी पानी है, अस्पताल के आगे पानी भी है, औरतों और बच्चों का पैदल चलना भी मुश्किल है। और यहाँ पे इलाके के मसाइल इतने हैं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर। ये इस इलाके में 22-25 साल से मैं देख रहा हूँ, इतना पानी सीने तक मैंने पानी देखा है। यहाँ हम लोग पानियों में आए गए, तकलीफ परेशानी। उधर शेरशाह सूरी रोड केडीए चौरंगी के करीब भी सीवरेज लाइन धंस गई। 36 इंच कतर की सीवरेज लाइन बैठने से जियाउद्दीन अस्पताल से आने वाला रोड धंस गया। 12 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ने पर इंतजामिया की दौड़ लग गई। मुताल्लिका इदारों का अमला मलबा डालकर शुगाफ पुर करने की जुस्तजू में लग गया। एमए जीना रोड पर दरख्त गिरने से रास्ता बंद हो गया। सड़क पर दरख्त के साथ बिजली के तार भी पानी में डूबे हुए हैं। उधर गुरु मंदिर के करीब भी रात गए गिरने वाले दरख्त को हटा दिया गया, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बहाल कर दी गई। कराची में बारिश ने शहर का मंजर तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी भरने के बायस शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। शहरियों की मैकेनिक की दुकानों पर दौड़े लग गईं। हमना निसार की रिपोर्ट। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों की अबतर सूरत हाल। सड़कों में पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर में जगह जगह पानी जमा होने के बायस मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद होने लगी। शहरियों की मैकेनिक की दुकानों पर दौड़े लग गईं। शहरियों ने बल्दियाती इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शहर में निकासी आब का निज़ाम तबाह है। अब पानी इतना था कि दोनों टायर नजर नहीं आ रहे थे मुझे। मैं बस कैसे न कैसे घर पहुँचाऊँ। अभी मैं अपने घर जाने जा रहा तो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अभी मैकेनिक के पास है, ये बोलते हैं इसका प्लग गया, इसका कड़ा गया, पता नहीं क्या क्या गया, XYZ। बहुत मुश्किलात है, गाड़ी में पानी चला जा रही है, बंद कर करके लोग परेशान है, फैमिली लेके लोग परेशान है। बाइक में प्लग शॉर्ट हो जाता है, पानी चले जाता है उसके कार्बोरेटर में, भाई यही दो फाल्ट आते हैं गाड़ी में। मैकेनिक हजरात कहते हैं सुबह से 40 से 50 खराब गाड़ियां आ चुकी हैं। पानी की वजह से ज्यादातर गाड़ियों में प्लग शॉर्ट का मसला आ रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि शहर में निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाया जाए ताकि इन्हें मजीद दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन गुलफाम के साथ हमना निसार, सिटी 21। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन दानिश चना का कहना है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उनकी पार्टी के 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुलशन इकबाल में मरकजी इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के बाद वो सिटी 21 से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज जमाली से। जिस तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन 2024 की तैयारियां उरूज पर हैं, चंद ही दिन बचे हैं और बड़ी गहमा गहमी है। वहाँ पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी भी अपना इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अभी यहाँ पर गुलशन इकबाल में पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है और पार्टी के चेयरमैन हैं दानिश चना, जिन्होंने इसका बाकायदा रेबन काट कर इफ्तिताह किया। इन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार भी कुछ मौजूद हैं। मैं चना साहब से बात कर ले रहा हूँ। चना साहब, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके अपने 14 उम्मीदवार हैं, कितने उम्मीदवार जीतेंगे इलेक्शन में, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी कैसे कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अकेला इस ज़मीन पे भेजा और अकेला ही वो कब्र में वापस जाना है। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी अकेली ही है और अकेली ही रहकर अपने कैंडिडेट को कामयाब कराने में 100% कोशिश कर रही है कि हमारे 14 के 14 कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुँचें। हम इंशाअल्लाह उनका मुकाबला करेंगे। और इस पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी, आप छोटी किस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी छोटी है? इसलिए कि कोई एक सीट नहीं जीत सकती। देखिए, सीट से दारोमदार नहीं होता कि किसी पार्टी के पास सीट हो और वो बड़ी है, किसी के पास सीट नहीं है कि वो छोटी है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब रजिस्टर करता है, उसको डिक्लेयर करता है कि उनके वो चीज़ें मांगी जाती हैं जो पीपल्स पार्टी से मांगी
मांगी जाती हैं, जो मुस्लिम लीग नून से मांगी जाती हैं, जो PTI से मांगी जाती हैं, वही पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ दे चुका है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम बराबरी के बुनियाद पे उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके साथ मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट को कामयाब करके। जी आपने सुना पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन और कुछ उम्मीदवारों को। बहरहाल इलेक्शन की गहमा गहमी है और तमाम जमातें अपने तौर पे इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ अमल हैं।